All right, ladies and gentlemen. So Makar Sankranti this year is actually not on 14th because Surya is entering in the Makra in the evening. Here when we don't see any Surya, Surya is set here. And tomorrow morning when we get up in India on January 15th, there's an actual Makar Sankranti. So it is my request to each one of you that tomorrow you people, I mean, I would want to give this an order to each one of you, right? Tomorrow you have to donate jaggery in the Gaushala, right? Not the shakkar, but the jaggery itself, right? उसके जो बड़े बड़े डेले आते हैं जैगरी के, वो आपको गुड़ जो है वो आपको डोनेट करना है. Tomorrow you have to go to the Gaushala. Tomorrow each one of you have to donate some jaggery there. It is very important, and you have to do it before 5 p.m., 6 p.m., right? It is very, very important, right? And what I'll do is tomorrow morning, I'll try ask Naman to get more jaggery. I did 50 kgs today, and I plan to do around 100 kgs tomorrow as well. And if you want the help of Naman, कि अगर यहाँ पे गौशाला आपके पास नहीं एक्सेसिबल है, आप डालना चाहते हो, तो आप अपना 10, 20, $50 जो भी है, बिकॉज गुड इज 45 रुपीज अ kg, राइट? सो 100 kg इज 4500 रुपीज, राइट? तो बट उसकी गाड़ी में भी 200 से ज्यादा kg तो क्या आएगा, राइट? टुडे आल्सो वी डिड 50 kg. टुमारो विल डू 100 फ्रॉम माय साइड. यू पीपल, इफ समवन डजंट हैव रिसोर्सेज, वैसे अपने हाथ से करना बहुत अच्छा है. इफ यू कैन डू इट विद योर ओन हैंड्स, it is very good. But if you have majboori, कोई problem है, you can contact Naman and we'll do it on your behalf. So आप नमन से contact कर लो, we will be doing it. So that is one that you're supposed to do tomorrow. टेम्पल में दे सकते हो, लेकिन वो कितना दोगे आप, कितना यूज करेंगे? वो गौशाला में तो what happens is you have 1500, 1000, 500, 200 goes, and in this chilly winter, one piece of jaggery is very good for the cow, very, very good. It gives a lot of warmness to the cow. So if you can donate it. टेम्पल में वो कैसे यूज होगा, कितना, how long it will take, so I have no idea, right? But of course, if there's no alternative, you can definitely give 4, 5, 10 kgs in a temple where they can make tea or they can make some, thing from the jaggery. Very, very good. Also, I want you to make khichdi tomorrow. I want you to make urad and rice mix करके आप थोड़ा खिचड़ी बनाइए, राइट? और उसको थोड़ा दान करिए, and then you eat, या उसका प्रसाद चढ़ाकर in the home temple, right? जो black lentils होते हैं, माँ की दाल, and then the rice, इसका mix करके खिचड़ी, because शनि को हम थोड़ा सा इसमें हम करते हैं, क्योंकि शनि देव के घर में सूर्य देवता जा रहे हैं. See, astrologically, Saturn and Sun doesn't gel each other. At a divine level, they are father and son. So that means even if you don't gel with your children, or if there's some misconceptions here, still you should have good relations with your children and parents. कभी कभी पेरेंट्स के साथ आपके अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं, राइट? आपको लगता है कि पेरेंट्स ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हमें ये सीखने को मिलता है कि इवन सूर्य देवता गोज इन द हाउस ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पे उनके मेंटल स्थिति जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती. और आप बिलीव करेंगे, अब आपको ये लेक्चर इसलिए आज समझाना चाहता था क्योंकि आई वांट टू टेल यू व्हाट इज सतोगुणा. यू नो what is the sattva? I'll ask you, what is the sattva? Sattva is that you are always in a super conscious. Whenever you are super consciousness, that is sattva, right? It's very simple to understand what is satoguna. Okay, now what happens is that there are only 3 planets that are pure sattva. Only 3 planets. Okay, so what are those planets that are pure sattva? One is Jupiter, the second one is Surya, and the third one is Chandra, right? Sun, Moon, and Jupiter, only these 3 planets are the pure sattva planets. Okay, nobody else, right? So these are the pure sattva planets. Now
In these three sattva planets also there is a difference, right? You see, the Surya is considered mild malefic. Today you will get the answer of this. You know why Surya is considered as mild malefic, right? Surya is considered mild malefic because of Dakshayan and Uttarayan. Simple. Okay. When Surya is entering the Uttarayan, which is moving towards the north, तो हमारे क्या होगा, हमारे यहाँ पे धीरे धीरे अभी बसंत आ जाएगी, flowers will start coming, fruits will start coming, the leaves would start coming, and we will approach, from spring to summers. Okay. And in Australia down southeast, they will enter winters because they were in their summers right now, right? I have explained this, the pictorial description of Uttarayan and Dakshayan in one of my videos. I have done that. You can go watch that video on the YouTube. I have clearly explained how this Uttarayan and Dakshayan works, right? And for us, see, all the positive energy of Surya is in Uttarayan, and all the negative energy of the Surya is in Dakshayan. Always remember this. So that is why Bhishma Pitama, he chose to give away his prana to in the Uttarayan. So that is this day, Makar Sankranti, when he said, okay, I'll give, because जिनकी भी death, एक बात आप याद रखना, ये भी एक ग्राउंड रूल है, जिनकी भी डेथ जो है वो उत्तरायण में होती है, उनकी जो आत्मा है वो वाया नॉर्थ साउथ की तरफ जाती है, ये भी बात आप याद रखिएगा. दैट मीन्स दे ऑलवेज हैव अपॉर्चुनिटी टू अटेन स्वर्ग, दे ऑलवेज हैव अपॉर्चुनिटी टू मीट नारायण, और they may go to Shiv Loka and then based on their karma. But when people who die in the Dakshayan, under those circumstances, their journey is directly towards the south, because it is the Surya, it is the responsibility of the Surya to make two souls meet. Okay, now you understand, this is a golden word I'm telling you. सोल आत्मा कारक नेचुरली सूर्य को क्यों बोलते हैं? एक सोल को एक फैमिली के बंच के ऑफ सोल्स के साथ मिलाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सूर्य देवता. Nobody else has, no other planet has this responsibility. No other planet, right? It is only the responsibility of Surya. That is why Surya is known as the Naisargik Atma Karak. Atma Karak means project manager. Someone who is a project manager for your soul, who is working for your soul, right? So who is working for your soul means that this soul has departed, this soul needs a rebirth. Now when that soul comes in a family, that soul is going to meet all the other souls जिनके साथ उनका पुराना संबंध था, right? So whenever two souls are meeting, okay, it is the responsibility of the Surya to to actually make two souls meet with each other, or two or more souls meet with each other, right? So that is the responsibility of Surya. And when Surya is in the complete sattva, that is in the Uttarayan, and the mild rajas and tamas enters Surya when Surya is in the Dakshayan mode. So remember this one thing. So a complete sattva Surya is what you will see from tomorrow morning. Very powerful, very clear, and lot of positive energy. And when Bhishma Pitama was going, what was his last achievement? His last achievement, which is gifted us, is the Vishnu Sahasranama, right? It is the Vishnu Sahasranama by Bhishma Pitama. So you all will start a Vishnu Sahasranama tomorrow morning. Simrat ji and Naman will make a group. The name of the group is Vishnu Sahasranama group, and you all will get invite in your various groups. You can join that group by that invite, and every single day, we will play Vishnu Sahasranama. We will write the glories of Vishnu Sahasranama. We will chant the glories of Vishnu Sahasranama for next 6 months, so that you people can get fantastic result. I would want you to, the way you have learned Hanuman Chalisa,
In the exact same way, you all will learn Vishnu Sahasranama in next 6 months. Word by word. We will write in our notebooks, we will chant the chopais, we will remember all the 1008 names of Vishnu. We all will, right? So I will make that group so that we all can elevate together. Okay, tomorrow morning, make a group known as Vishnu Sahasranama group, right? And give that link to all the students, that they join us. We start writing and singing the glories of the Vishnu Sahasranama. It will be one good karma that we'll be able to do. It is a great opportunity. And this thing has come to my mind, while I was doing my sadhana, that Navneet, it is the time to do this with your students now. And that is what I'm going to, do with you people. So, Simratji, tomorrow morning with the first sunrise, you know, uh, I want you people to make this group with Namanji, and then you add everyone, and then you start chanting, start writing, right? And with the time, with 1 week of Vishnu Sahasranama, with 15 days of Vishnu Sahasranama, with 20 days of Vishnu Sahasranama, you people will give me your experiences. What are the changes that you're getting in life? How it is making a difference in your life, right? And there are a lot of remedies will also come out of the Vishnu Sahasranama. So that is point number 1. So Surya mild malefic because of Uttarayan and Dakshayan. So what happens is the sattva of Surya is like this. Okay, north south. It is like this. That is why people call it as a mild malefic. But what happens to Chandra sattva? See, at the Purnima, Chandra is Sola Kala Sampurna, no? Sola Kala Sampurna Chandra, pure sattva. But where is that sattva going during Amavasya? Where is that sattva going during Amavasya? It has gone to tamas. It has added Shiva. So I must tell you that moon is also not pure sattva. Because mind cannot be pure sattva. Now you are thinking of Vishnu Sahasranama. After the class, you might be thinking of having, a nice dinner. So you're thinking Rajasic. And maybe in the night, you're thinking something else. So even mind, because the sattva of Chandra is based on waxing and waning. Simple. Even that sattva is gone. But only Jupiter is one graha with the highest amount of magnetic field. You go research astronomically, which planet has highest magnetic field? It is the Jupiter. Either, see, what is the property of Jupiter? What is the property of magnetic field, first of all? You tell me, ladies and gentlemen. Either the magnetic field will attract you or it will repel you, depending upon, the pole. Either it will attract or it will repel. So first, Guru will attract you. And then Guru will push you towards moksha, repel. And tell me one thing. Is it possible by any element in this world to come in between the attraction of a magnet? किसी में इतनी पावर होती है कि जब एक मैग्नेट ने किसी को अपने चीज तरफ खींच लिया तो उसको बीच में रोक सके? No. That is the pull of a guru. That is the pull of a guru. That is the pull of the guru. So that is why Jupiter is the actual Dhanakarka. And you learn this thing from many scriptures. If you've read Gurbani, what does Gurbani say? क्या बोलती है गुरबाणी? तन तन गुरु नानक.
क्या बोलते हैं? धन धन गुरु नानक. धन in Punjabi means actually they're talking about dhan. Dhan dhan Guru Nanak. You know, धन धन गुरु नानक देव जी. जब भी हम गुरुद्वारे में जाते हैं ना, एक कोई वर्ड बार बार बोल दे, धन धन गुरु नानक देव जी, धन धन गुरु नानक देव जी. So what do you mean by धन धन गुरु नानक देव जी? That guru is a real wealth. It is the actual wealth. It is the actual prosperity. That is what guru is. And it is very, very important. And today, three concepts that I'll teach will have ability to change your life. So दो चीजें आपने कल करनी है. क्या करना है मेरे को बताओ. पहला, विष्णु सहस्त्र नाम का ग्रुप बनाना है. Right? Your life will change. दूसरा आपको क्या करना है? You have to go and donate जैगरी. तीसरा, घर पे खिचड़ी बनानी है. खिचड़ी को मनस के, अभी दिशा लिख रही, that's our tradition, खिचड़ी we plan tomorrow anyhow. Yes. ये जो बुजुर्गों ने आपकी ट्रेडिशन लगा रखी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये खिचड़ी कल बनाओ अपने घर में, बनाकर आप सबको खिलाओ. गिव इट टू एवरीवन. राइट. उसको थोड़ा दान भी करते हैं. थोड़ा बर्ड्स को डालो, थोड़ा गाय को डालो, राइट, थोड़ा डॉगी को डालो, फिर खाओ. तीनों को डालो, थोड़ा मनसो उसको, फिर खाओ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. हमारे तो यहाँ पर थोड़े से तिल, सेसमी सीड ऑयल और सेसमी सीड्स जो होते हैं उसको मूली के साथ भी खाया जाता है. वी आल्सो डू दैट एज वेल ऑन द डे ऑफ संक्रांति, मकर संक्रांति. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सम ट्रेडिशंस आर एब्सोल्युटली, someone changing their Mahadasha in Uttarayan will be very spiritual part. बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी आती, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी आती है. सो अब हम सूर्य की बात कर रहे हैं इसमें, तो मैंने सोचा कि आपको सूर्य का एक गिफ्ट दे देते हैं. यू सी, सूर्य इज सोल. ओके. एंड सोल से एक बहुत प्यारा वर्ड जुड़ता है, विच इज नोन एज सोलमेट. तो आज हम आपको टेक्निक सिखाएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपकी शादी सोलमेट से हुई है कि नहीं हुई है. इज योर करंट हस्बैंड और वाइफ योर सोलमेट, और he or she is a karma mate? It's a karmic settlement, right? Please, but एक चीज है, don't start hating your life partner for this, okay? That you're bloody not my soulmate, it's just a karmic settlement, and I knew this, and I 100% knew this कि ये karmic settlement है और आप मेरे साथ कर्म पूरे करने आए हो या आई हो, right? So get the hell out of here, okay? So don't do that, okay? Don't do that. You see, I must tell you one thing. एक बात आप याद रखना. पहले आपको ये समझना होगा कि सोलमेट होता क्या है. What is a soulmate? Soulmate is someone who behaves in the same way, the way you are behaving, without your intimating anything to that person. तो बचपन में जब हमारा 10वीं 12वीं के अंदर किसी के साथ दोस्ती होती थी, तो हमारी दोस्ती कैसे अच्छी होती थी? वो कैसे अच्छी होती थी कि उससे पूछते थे आपको क्या खाने को अच्छा लगता है? वो कहती थी मुझे गजरेला बड़ा अच्छा लगता है. तो मैं सोचता यार गजरेला तो मेरा भी फेवरेट है. क्या कनेक्शन है यार, यू नो. आप समझ रहे हो. फिर उससे पूछा जाता था कि आपको गाड़ी कौन सी अच्छी लगती है? बोले मुझे तो ये गाड़ी अच्छी लगती है. यार मेरे को भी वही गाड़ी पसंद है, यू नो. वाह. फिर पूछते आपको कलर कौन सा अच्छा लगता है? तो मेरे को ग्रीन कलर अच्छा लगता है. ओह माय गॉड, आई एम इन लव विद द ग्रीन कलर. व्हाट अ कनेक्शन यार, व्हाट अ कनेक्शन. और फिर फेयरवेल की पार्टी होती थी, और फेयरवेल की पार्टी में मैं ब्लू कोट पैंट डाल के गया और वो भी ब्लू साड़ी डाल के आई. मैं कहा हाउ आर वी मैचिंग टुडे, व्हाई आर वी मैचिंग टुडे? And then that person, so I didn't plan this.
You didn't plan this? It was so natural. Oh my God, she's my soulmate. You know, so that is the definition of the soulmate. Okay. But the question is it good idea if you have married with your soulmate? Yes and no both. बिकॉज जब आप सोलमेट के साथ शादी करते हो ना, मैंने ये फॉर्मूला जब लगाया तो बहुत से सोलमेट जिनका डिवोर्स हो रहा था ना, उनके ऊपर भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था. आपको क्या लगता है कि सोलमेट के साथ आपका डिवोर्स नहीं हो सकता? कम ऑन टेल मी. आप मुझे एक बात बताओ, soulmate means your soul and the other soul are at the same vibration. फ्रीक्वेंसी मैच करेगी. रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ना, 92.7 आपके उस पे चल रहा है और वही 92.7 मेरी गाड़ी में चल रहा है. वी आर द सेम फ्रीक्वेंसी, लिसनिंग द सेम थिंग, डूइंग द सेम थिंग, एंजॉयिंग द सेम थिंग, एंजॉयिंग द सेम म्यूजिक. दैट्स द सोलमेट, राइट? इट डजंट मीन कि अगर आप सोलमेट हैं तो आपका डिवोर्स नहीं हो सकता. ये वो गंदा वाला डिवोर्स होता है. इट इज सच अ ट्रेजिक डिवोर्स where the couples were so close to each other, they liked each other so much, but it is the third person's karmic settlement, mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, जिन्होंने आके उसकी लाइफ को खराब किया होता है. आप समझ रहे हो? या circumstances, or maybe a karma, some bad karma, maybe a karmic settlement जिसमें एक तीसरी लेडी आ गई या एक तीसरा लड़का आ गया, उसका एक कार्मिक सेटलमेंट था विद दीज टू सोलमेट्स, और उसने आपसे कुछ गलत करवा दिया. यू गॉट कैरिड अवे और धोखा अगर खत्म हो गया. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो सोलमेट की डेफिनेशन आप ये मत लेना कि मेरी तो शादी सोलमेट से हुई नहीं है तो मेरी जिंदगी बर्बाद. ऐसा नहीं है. इफ यू आर नॉट मैरिड टू सोलमेट, वन थिंग इज फॉर श्योर, दैट यू विल नॉट enjoy the highest level of intimacy. You will not enjoy some things that are really similar. Okay, for an example, if you are into Krishna consciousness, right, और आपका आत्मा की आवाज है कि आपको भगवान कृष्ण की शरण में रहना है, आपको भगवान कृष्ण की कॉन्शियसनेस में रहना है, और आपका हस्बैंड आपको बोल रहा है कि चलो बियर पीने चलते हैं शाम को, बहुत गर्मी है, या ठंड है तो आपकी वाइफ बोलती है कि आज रेड वाइन पियेंगे. दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करती, वो आपसे प्यार नहीं करता. दे लव यू, यू हैव अ कार्मिक सेटलमेंट, बट इट इज नॉट अ सोल कनेक्शन. सोल कनेक्शन मीन्स कि आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, वो इंसान भी अंदर से कहीं ना कहीं से वही सोचता है, उसी फ्रीक्वेंसी पे है. राइट? हमने सोलमेट को बहुत बड़ी डेफिनेशन दे दी है. यू नो, सोलमेट मीन्स कि कोई आत्माओं का मिलन. आत्माओं का मिलन तो एनीवेज आप सबका ही हो रहा है. You know, when you meet your family, it's an atma milan. When you meet your spouse, even if he or she is your karmic spouse, right? And out of 10 people, only 2 people or 3 people who are married are actually the soulmates. I mean, based on my data that I have, which you will be able to reveal in next 5 minutes max. Okay. Now, what is the formula to find out that he or she is your soulmate or not? और बहुत से लोग तो जो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो वो अपने नॉर्मल पार्टनर को सोलमेट बनाना चाहेंगे क्योंकि उनको फॉर्मूला पता लग जाएगा. राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला? यू सी, द planet which is responsible to make you meet different souls is सूर्य. आज हम मकर संक्रांति है तो सूर्य देवता की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ यू लुक एट where your Surya is present in your horoscope. Now इसमें दो प्रिंसिपल हैं. Principle number 1, you make like 2 arrows like this. I'll share the whiteboard. Make 2 arrows like this. ऐसे. One is when you met someone really whom you love and you're not married.
Okay, so your guru can also be your soulmate, your friend can also be your soulmate, your mother can also be your soulmate, your father can be your soulmate. काम वाली बाई जो आती है ना घर पे, वो भी फीमेल की सोलमेट हो सकती है. It is the frequency with somebody matches with you. Okay, so obviously we use soulmate more when it comes to boyfriend, girlfriend, and husband and wife, right? That is our mentality. So if you met your boyfriend but you could not get married with him, or you met someone whom you really love but it is after marriage, right? So even that person can be soulmate but you're not married. Simple, right? Because you are same frequency. So look at where your Surya is in the horoscope. Okay, I ask you a question. In the Lagna Kundli, first house is you. पहला घर आप होते हो. लग्न, इंटेलिजेंट, ब्रेन, सब कुछ. फर्स्ट हाउस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाउस को सूर्य भाव भी बोलते हैं. आज के बाद आप फर्स्ट हाउस को क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? सूर्य भाव. सूर्य भाव बोलते हैं ना फर्स्ट हाउस को. और फर्स्ट हाउस से एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होता है? इज योर स्पाउस हाउस, सप्तम भाव. ठीक है, सेवंथ हाउस इज फॉर योर स्पाउस. राशि चार्ट की बात कर रहा हूं, अभी कहीं और आगे मत भाग. वन बाय वन चलोगे ना मेरे साथ मेरी फ्रीक्वेंसी में, तो आप सारे मेरे सोलमेट हो. अगर आप आगे बढ़ जाओगे फिर आप मेरे सोलमेट नहीं बन पाओगे. ठीक है, हम बन भी सकते हैं किसी के सोलमेट, जरूरी नहीं है. सेम फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ता है. इसी प्रकार आपकी कुंडली में जहां पर सूर्य देवता है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट सेवंथ हाउस में जो ग्रह है. अब ग्रह है का मतलब है there are chances there is no planet in that house. There are chances that there is a planet in that house. ठीक है, if there is a planet in that house, that is number one priority. Okay, and if there is no planet, then the lord of that house is representing the energy of the soulmate. But how do you know? You know if you have gotten married in the Mahadasha of that graha, which is exactly opposite to Surya in the Rashi, or not and, or if you have married in the Antradasha of that graha, which is exactly opposite to Surya in your Navamsha. Simple. महादशा का प्रिंसिपल लगाना है राशि पे, और अंतरदशा का प्रिंसिपल कहां लगाना है? नवमांश में. मेरी बात एक याद करो, जब मैंने आपको कहा था कि अंतरदशा के रिजल्ट हमेशा डिविजनल से देखने हैं, नवांश से देखने हैं. याद करो, मैंने आपको बोला था कि अंतरदशा का आपने जब भी कुछ देखना है आप डिविजनल चार्ट्स में जाओ. अंतरदशा हमेशा डिविजनल चार्ट में अच्छा रिजल्ट देती है, महादशा राशि चार्ट में. तो आप ये देखो कि आपका सूर्य, जैसे मेरा सूर्य तीसरे भाव में है D1 में, और उसका अंतरा क्या है, मतलब उसका जो ऑपोजिट है वो जुपिटर है. ठीक है, नाइन्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं है. जुपिटर जो है, अब मैं जुपिटर को ले लूंगा. मैं सबसे पहले दूंगा मेरी जुपिटर की महादशा में शादी हुई. अरे मेरी जीवन में तो जुपिटर की दशा ही नहीं आई. ठीक है, तो राशि चार्ट डिस्कार्ड हो गया. इट्स ओवर. अब बात करते हैं नवमांश में. नवमांश में जाके आपको सूर्य देखना है. सूर्य के ऑपोजिट कोई ग्रह बैठा है, अगर कोई ग्रह नहीं बैठा तो उसका लॉर्ड ले लो, उस हाउस का. उस पर्टिकुलर अंतरदशा में आपकी शादी होनी चाहिए. अगर तो उस पर्टिकुलर अंतरदशा में, नॉट महादशा, अंतरदशा, नवमांश से जो आप फीडबैक उठा रहे हो वो अंतरदशा का उठा रहे हो. ठीक है, अगर नवमांश में, अब जैसे मान लो किसी का भी हम चार्ट ले सकते हैं. बताओ किसका चार्ट लें आज? हैं? You can take mine, Guruji. और तेरी, मतलब आपको प्रूव करना है कि मेरा सोलमेट नहीं है वो. वो तो पता ही है. और हो भी तो सकता है. You guys are crazy. चलो
आपका चार्ट लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट फिर क्या हुआ, सोलमेट नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि कार्मिक सेटलमेंट है, मतलब है तो कार्मिक सेटलमेंट ही। एनीवेज, सो अच्छी बात है, नहीं है, रिपेलिंग अच्छी हो रही है। अगर निकल आया तो ओपेट। ठीक है। सो पारुल छाबड़ा, ये लो, पारुल छाबड़ा जी आ गई हैं। यही है ना आपका चार्ट? इज दिस योर चार्ट? December 16, 1984, Yeah. 1:28 a.m. and 40 seconds. Mm. Okay, 1:28:40. Okay, now मरकरी। ठीक है, so Mercury इधर है Venus. So when did you get married? Venus की महादशा तो आई नहीं होगी, तो लग्न चार्ट तो डिस्कार्ड हो गया नहीं, ठीक है। नहीं गुरुजी, मरकरी चेक करेंगे ना आप? एक मिनट, Venus। नहीं राहु चेक करेंगे हम। क्यों? अरे नहीं, सॉरी सूर्य के अगेंस्ट मरकरी। Seven। ना मरकरी ना गुरुजी। नहीं, हम मरकरी चेक करेंगे, मैं तो जी, जबरदस्ती मरकरी। राहु बना रहा था। जी। फिर तो भाई साहब अभी खत्म कर दो, उसी महादशा में शादी हुई है। नहीं, so we'll go to this Surya, Mercury. So exactly opposite to Surya is we have Mercury. So Mercury पे तो आपकी दशा नहीं आई। Okay, so we will discard this and we'll go to the divisional chart Navamsha, only Navamsha for the marriage. अब यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य के जो exactly opposite है शुक्र। So आपका कौन से अंतर में शादी हुआ? When did you get married? I got married on 17th January 2013. So 10 साल हो जाएंगे अभी 3 दिन में। Wow. So 17th of January 2013. So 2013 7th of January was Saturn, है ना? ये देखो 8th of Feb तक Saturn था, तो 4/4 से Saturn चल रहा था। So सूर्य के opposite शुक्र है। So there is no connection. So technically the current spouse you have is not your soulmate, but it's a karmic settlement. गुरुजी Right. 1 महीना रुकती है मैं सोलमेट से शादी कर लेती, चेक करो आप। मरकरी आ रहा था। अभी आप मत बोलो, ये YouTube पे डाल दूंगा। आप बस मेरी बैंड बजाओ, मेरा भाई और मेरी नहीं, माँ हर रोज पारुल आपकी जी, वीडियो देखते हैं। नहीं मैं डाल रहा हूँ पारुल इस पे जी, YouTube एक पे, मैं महीने डाल के रहा बाद भी पारुल जी 1 महीने के बाद भी वो वीनस की ही अंतरदशा में होना चाहिए। आप सोचो ना। अच्छा, मैं हाँ, मरकरी का क्योंकि सोच रही थी। हाँ, इस जन्म नहीं में कर आपको सकते, वो तो soulmate- होना ही नहीं था। नो नॉट पॉसिबल, मतलब आप सोलमेट के सपना छोड़ दो इस जन्म में, ठीक है चलो ना? 10 साल के कर्म तो कट गए। हाँ 10 साल कर्म कट गए, अभी और भी कटने हैं कर्म, ठीक है। सो बेसिकली इट मींस अगर आपका सोलमेट से शादी नहीं हुई है, उसका एक सबसे सीरियस नोट पे मतलब है कि लॉट ऑफ कार्मिक सेटलमेंट हैज हैपन इन द मैरिज, राइट? तो इसमें एक चीज मैं आपको याद बता दूं कि जो मैंने 22 साल, मेरे 22 साल कट गए, सिमरत जी बोल रही है वाओ फैंटास्टिक, राइट? सो देखो सबके कटते हैं, यू नो, सबके कटते हैं। परवीन जी को तो खांसी लगी है। उनको तो लग रहा है पता नहीं कितने साल कट गए मेरे। ठीक है ना? तो होता एक दिन है। इज इक्वल टू एक जन्म बना रहे हैं प्रवीण जी। सर शाबाश। दिशा जी का देखो, उनका सोलमेट होना चाहिए। Still sitting. Okay. Yes, Shreya, you want to ask something? देखते हैं, सुमित जी देखते हैं इनका, दिशा जी सर का। अगर स्पाउस के sure चार्ट में कुछ मैचअप हो रहा हो, सॉरी कम अगेन। अगर जैसे हमारे चार्ट में नहीं आ रहा है, स्पाउस के चार्ट में आ रहा हो तो फिर हाँ तो वही हो गया ना कि आप जो है ना, हम मतलब कदम। आप उनके सोलमेट है, वो आपके नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, हाँ वही। ठीक है ना? ऐसे भी हो सकता है कि एक लेवल पे उनकी जन्म में एक फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करती थी, ठीक है ना? मतलब लेकिन आपकी नहीं है आज की डेट में वो फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन बदल चुकी है आत्मा की। आइदर यू हैव यू नो एलिवेटेड सो मच और यू हैव डिक्लाइंड सो मच। द बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? दिस वाज द सेकंड स्टेप आई वाज कमिंग टू। व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन? व्हेन बोथ ऑफ यू गॉट मैरिड, you know, with this condition, then you are actual soulmates. वो रिश्ता सबसे strong होता है, you know, वो रिश्ता सबसे strong होता है। You understand? When both of them
और ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। सो अगर एक बंदा सोलमेट से किसी की शादी हुई है, राइट, और दूसरे का वो सोलमेट नहीं है उसका, सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन दैट योर फ्रीक्वेंसी, यू नो, इफ यू आर माय सोलमेट, तो आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क होगा बताओ? क्वेश्चन करो, क्या फर्क होगा? टेल मी, रिप्लाई दिस। You are my soulmate, but I am not your soulmate. What does that mean? Guruji, I see that as like a preeti. मतलब अगर मेरे husband के चार्ट में देखे तो it is a soulmate, which means that there's devotion and there's like respect and there's like that. Actually, But पता there's क्या no, हुआ? देखो, अगर आपके हस्बैंड की शादी सोलमेट से हुई है और आपके वो सोलमेट नहीं है, you know what? किसी जन्म में, from some previous janma, right? There was some soul connection, obviously, right? But that soul connection for you became karmic. You understand? For you, it became karmic because of XYZ reasons. Might be he's done something bad to you. Right now, what is happening is he got his soulmate back, right? But for you, it is now a karmic relationship. Okay, it is now a karmic. मतलब इसका मतलब ये है कि आपके हस्बैंड की आपके साथ किसी ना किसी जन्म में बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच करती थी, और उस फ्रीक्वेंसी की पूर्ति उनको इस जन्म में हो रही है, राइट? और ऐसे लोगों की शादी में क्या होता है कि he will get more benefit, you will get more pain. You know, एक तड़प होगी कि यार कहाँ, कैसे, क्यों, राइट, छोटी छोटी बातों पे। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब आपकी सोलमेट से शादी नहीं हुई होती है और आपके सोलमेट जो है, आपके जो हस्बैंड है, वो उनके लिए आप सोलमेट हो, तो देन देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट यू कैन गो रॉन्ग in the marriage, because then you are not connecting with your soul with that person. However, the other person is connecting to your soul. Am I clear or not? Have you understood what I'm trying to tell you? Have you understood or not? And if there is no such thing in both the charts, then what is it? Then it is a pure karmic settlement. When one of them is married a soulmate, then it is not a pure karmic settlement. It's not a pure karmic settlement. There is some soul connection definitely from the previous births. अगर एक भी लाइफ पार्टनर, एक भी, if one single life partner after दोनों में से, हस्बैंड वाइफ में से एक भी सोलमेट है, तो ये कंप्लीट कार्मिक रिलेशन नहीं है. It is good. If both of them are soulmate, तो that means आपका ये जन्म एक बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी को सेटल करने के लिए हुआ, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी. अगर आपकी शादी आपके सोलमेट से हुआ, डोंट लेट दिस मैरिज गो इजीली. वर्क ऑन दैट मैरिज. Work on that marriage. Yes, Paruji. Guruji, the example where you said that they are soulmate, like people are soulmate and they still get divorced and everything, right? So does that mean that they're, even the soul carried that karma, and then when that karma got settled, they don't want to be together? No, it is because of some badaka. It is because of some curse. क्योंकि सोलमेट को बाधका ही खराब करता है. सोलमेट को हमेशा बाधक खराब करता है. Always. It is the badaka that will always ruin. Yes, Simraji. So I'm checking my husband's chart. तो for him D1 में तो नहीं आ रहा है. Then I went and looked into Navamsha, and Navamsha में opposite sun जो लॉर्ड बन रहा है वो मार्स बन रहा है. तो उनकी शादी जो मेरे साथ हुई वो महादशा ऑफ मार्स में, पर अंतरदशा ऑफ मार्स में नहीं, तो मैं नहीं मानूंगी ना. ना. ठीक है, गॉट इट सर. वैसे अगर थोड़ा बहुत Thank you, मानना है, मान लो, चलो. सर भाई सर तो कट गए हैं. ठीक है ना. आप बिलीव नहीं तो करोगे. वैसे फार्मूले देखो पे देखो फिट नहीं एक होगा. वैसे देखो बेसिकली उसमें जो श्लोक है ना, मेरी बात सुनिए. जो हाँ, उन्होंने sure. बताया गया है, जो उसमें बताया, उसमें कहा है महादशा अंतरदशा दोनों का नाम लिया उन्होंने. ठीक है. ठीक है सर. लेकिन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस हम जो है नवमांच के अंदर
बेसिकली अंतर्दशा को अप्लाई करते हैं, ठीक right? है, Basically, but the word has been Oh. used as Mahadasha Antardasha, right? ठीक, But technically, it is. और जो बेस्ट सोलमेट की कहानी आती है वो आती है कि लगन से राशि चार्ट में जो प्लैनेट सूर्य के ऑपोजिट था उसकी महादशा हम्म, थी, उसकी महादशा थी, और नवमांश में जो प्लैनेट ऑपोजिट था उसकी अंतर्दशा थी। वो वाओ, तो like the highest level of soul connection. अब जैसे मनस ने लिखा अगर 2-3 ग्रह हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा, आप 2-3 अंतर्दशाएं चेक कर सकते हो उसमें, नथिंग रॉन्ग। सो आई मीन, और एक जुड़ी थोड़ा ना मोर चॉइसेस साईं जी कह रहे मोर चॉइसेस, सो हो सकता है इस दशा में 3 दशा के अंदर वो चीज आपकी निकल सकती है। यस नंदिता जी, यू हैव अ क्वेश्चन? Yeah. So, I mean, we're basing this on people who are married, but what about people who are not married? Like, can we help them they see can- if they're I mean, how can we? They have not married, so ask them to get married in that period. okay? So that's how it would work. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So, and what happens if you have a combination where one person's is matching at the Mahadasha level and the other person is matching, but At it's the at the Navamsh Antardasha? level, yeah, both are soulmates. Okay. Either of one you have to. I said or. The word I used in the Right. beginning was or, not and. Right. अगर and होता तो दोनों कंडीशन लेनी थी फिर हमें. It is or, Okay. either here or here. So देखो, सूर्य से ऑपोजिट, आपके सोल के ऑपोजिट आपका ऑपोजिट सोल बैठा है। आप ये Yeah. बात तो क्लियर हो गई ना आपको? सोल के ऑपोजिट आपका ऑपोजिट सोल बैठा है, तो सोल के ऑपोजिट सोल को क्या बोलेंगे? सोलमेट। Hmm. क्लियर हो गया? ठीक है, वो आपको मिला कि नहीं मिला, वो फलित कौन करवाता है? विंशोत्तरी महादशा। वो फलित कब होता है? अगर उसके पीरियड में शादी हुआ, गठबंधन हुआ, तो वो आपका Right. सोलमेट है। अगर नहीं हुआ तो वो आपका सोलमेट नहीं है। Right. इतनी Because when you- अंडरस्टैंडिंग, इतनी Yeah, अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी चाहिए ना। Right. Sometimes you may not even run those Mahadashas, right? Or you've already run the Mahadashas. एब्सोल्युटली। Okay. सनी, किस किस सोच में पड़ गया? कोई मिली थी उस अंतरदशा में? ब्रेकअप तो नहीं हुआ उसके साथ? वो आपकी सोलमेट थी। दोबारा कॉल करो उसको, कॉलर, टेलर। Guruji, Okay. my husband के चार्ट में उसमें है like महादशा was Jupiter and sun के opposite Jupiter है, और अंतरदशा में 8th house में Sagittarius का sign है, and वो अंतरा भी Jupiter था, so I'm like double trouble तो for him. इसका मतलब not double trouble for him is, what is happening is that उसका मतलब पता है क्या होता है? Beside any odds in your life, एक चीज याद रखना, he will never leave you. Lucky I mean, you. you can leave him, he will not leave you. He will not leave you. The guilt will kill me. yeah, अब मत डालना गुरुजी प्लीज इसको. So it's like one-sided love, which is the most dangerous thing. One-sided love gives you tons of pain. क्योंकि आप पता है कितना प्यार कर बैठते हो उस इंसान से वन साइडेड लव में, कि आपकी हिम्मत ही नहीं होती उसे कहने की कि आप उससे प्यार करते हो। दिस इज दी ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वन साइडेड लव की, बिकॉज यू आर गॉड डैम सो सीरियस अबाउट दैट पर्सन दैट यू कांट अफोर्ड नो। यू कांट अफोर्ड नो। आपको लगता है रादर उस पर्सन को छोड़ दो, लेकिन वो अपने मुंह से मेरे लिए ना बोल दे। दैट इज वन साइडेड लव। आप समझ रहे हो मेरी बात? When you have really proposed someone, it may not be a very extensive love at your soul level. Soul level में ये वो लोग होते हैं जैसे एक लोग एयरपोर्ट पे मिले इतने बजे, और बंदा एक हफ्ते बाद फ्लाइट लेके उतने बजे दोबारा उसी एयरपोर्ट पे वेट कर रहा है उस बंदे की कि शायद वो बंदा फिर दिख जाएगा, और वो बंदा या बंदी फिर दिख गई। मतलब सोल्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं।
और उसका आपको पता भी नहीं है, यू आर नॉट इवन अवेयर, you know. So a lot of people call it, I don't know what the आजकल नया word use कर रहे हैं वो soulmate के लिए, you know. I don't know what is that word, somebody was telling me कि, you know, they have The redefined word twin flames. Twin twin flames. flames, you know, they Yes, have sir. redefined the soulmate. So somebody was telling me, Mr. Chitkara, do you give consultation based on twin flames? अब मैं उसको क्या बोलूं कि भैया हमें सारा कॉन्सेप्ट पता है, अब तू ये हम बता रहे हैं आपको, अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं आपका तो पूरा कॉन्सेप्ट गलत है, ये तो ये मेरा रियल सोलमेट है, बट ये कंडीशन ही नहीं मेट होती है। तो हो सकता है कोई और कंडीशन भी हो जो हमने अभी तक ना पढ़ी हो। आई एग्री, आई एम अ स्टूडेंट, दैट आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। So, yeah, twin flames are highly karmic relationships. They're not Yeah. soulmates. They're Oh. there to teach each other lessons. So they are, it feels like a soulmate, but it's a intense karmic relationship. So then every marriage is a twin flame, right? Yeah. Pretty Wow. much. So every marriage is a No. then what is the difference? I mean, I would like to understand this. Who No, can but explain when this? in Guruji, one class, they take, sorry, Praveenji, go ahead. sorry. No, in one class, Guruji has said that your spouse is your highest, karmic settlement. Karmic. In Yeah. one of your class, you have said this very clearly. Yeah. So, Yeah. in any case, if it is a soulmate also, it is the highest karmic settlement. I think so. Maybe I'm wrong. You know what? Soulmate is the highest karmic settlement, of course, with lot of good frequency, Correct. That's because the you are at the frequency. same channel. Correct. You know what will happen is कि वो आपको वो दोपहर को भिंडी बना के रखेगी और आप उसको पूछेगी तेरे को कैसे पता मेरा आज भिंडी खाने का मन था। Correct. That is at a body and mind level, Guruji. That is ठीक not है, at a soul आत्मा level. लेवल, मतलब आपका कुछ खाने का मन कर रहा है। अब जी. जैसा अब मैं आपको मेरा बृहस्पति के साथ थोड़ा सोल कनेक्शन टाइप से, कैसे, जैसे मेरा ना गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा है किसी दिन, आई रियली वांट टू हैव गुलाब जामुन। हाँ, मैं किसी के घर जाता हूँ चाय पीने, वो सामने गुलाब जामुन रख देते हैं। अब मैं मन ही मन सोचता हूँ कि इनको कैसे पता लगा मेरा गुलाब जामुन खाने का मन था। फिर वो बोलते हैं नहीं मैं को नहीं 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 आपने क्यों इतनी फॉर्मेलिटी की, आप क्यों कर रहे हैं आप, तो फिर नहीं प्लीज ले लीजिए। मैं कहा नहीं नहीं प्लीज नहीं नहीं, वो तो दूसरी बार भैया, तीसरी बार तो मैं ले ही लूंगा, ठीक है, मेरा अंदर से कितना मन था, ठीक है। सो दैट फ्रीक्वेंसी इज देयर, आई बीन वेरी ऑनेस्ट विद यू। ऐसी फ्रीक्वेंसी आपकी परमात्मा के साथ एक पर्टिकुलर दिन के वार के साथ भी हो सकती है, कि आपकी कुछ इच्छाएं जो आपके मन को करी थी, वो आप देखो किस दिन पूरी हुई, व्हाट डे वो इच्छा आपकी पूरी हुई, यू नो। सो बहुत बहुत सी चीजें हम इसमें रिसर्च कर सकते हैं। बट सिमरत जी आप क्या कहना चाहती हैं? You want to say something? I'm coming to Parul ji. Yes, sir. असल में मैं और आगे देख रही थी. So for me, the Lord has to be Sun again, क्योंकि जो opposite है वो Sun का ही Lord है. तो सन की महादशा तो सूर्य की So सन की महादशा, वही बता रही हूँ, सन की महादशा आ रही है मेरे पास 10 years के बाद, और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे हस्बैंड का सैटर्न है और उनकी भी महादशा आने वाली है सैटर्न की in another 12 years. तो उसको मैं कैसे लूंगी? कुछ नहीं लेना, अब शादी हो चुकी है, डोंट टेक अच्छा, इट टेंशन। वो तो दिशाएं तो सर मुझे बदलेंगी लगा ना। कि शायद कोई आ जाएगा हाँ, फिर से। मतलब आप कह रहे हो कि आपके हस्बैंड की लाइफ में कोई मिला या आपकी लाइफ में कोई मिला तो आपके सोलमेट है, तो वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपकी कोई बहू आ जाए आपकी लाइफ में, वो आपकी सोलमेट हो और आपकी बड़ी अच्छी जेलिंग हो जाए, आपकी डॉटर इन लॉ भी आपकी सोलमेट हो सकती है। Yeah, definitely, sir. ऐसे भी हो सकता है. ऐसे So that's भी a हो good point that it doesn't have to be a person you woke. It can be देखो, anyone, right? आप कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत मैच की, जिसने आपकी आत्मा को शांत किया और वो पर्टिकुलर प्लेनेट के अंतरा में आया है, तो वो आपका सोलमेट है। Got it, sir. उसकी अंतरदशा में आप अपनी अंतरदशाएं चेक कर लो सारी, और आप ठीक है, देखो कि सर. आपको उन अंतरदशाओं में कौन कौन लोग मिले, ठीक है, या महादशाएं चेक कर लो कौन कौन से लोग मिले, और कोई ऐसा लोग जिसके साथ बैठे आपको ना तो आपको उससे कुछ लेना है, ना आपको उस पर्सन से कुछ देना है, लेकिन आप उसकी कंपनी घंटों घंटों एंजॉय कर सकते हो। दैट पर्सन इज योर सोलमेट। इवन अ Got it, डॉग एट योर होम कैन बी योर सोलमेट।
because even a dog has a soul. A small is true. pet can be, कि आपके घर में वो डॉग किस अंतरदशा में आया, आप इसको जितना मर्जी रिसर्च कर सकते हो, जिस मर्जी लेवल पे कर सकते हो. यस श्रेया. Sir, you answered my question. मेरे हस्बैंड का महादशा अंतरदशा दोनों वीनस है. तो right now he's going through Venus, in the Venus, and he's become highly spiritual. एकदम. He's Yeah. talking to me about spirituality. Maybe he may found Guru. यस यस. अभी क्या है कि वो सोल कनेक्शन जुड़ रहा है. हम्म. ठीक है ना, अचानक से वो सोल कनेक्शन जुड़ने लग जाता है. सो दैट्स हाउ इट इज, यू नो. सो दशाएं वो चीज फलित करती हैं. जी पारुल जी. गुरुजी, 2 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, जब आपने वो गुलाब जामुन लाइक एग्जांपल दिया था ना, व्हेन इट इज लाइक जुपिटर लाइक दैट, राइट, मैंने देखा कि मैं जब कुछ खाने का मन होता है ना, प्रसाद में मिल जाता है वो. हाँ. जैसे खिचड़ी खाने का मन है, प्रसाद में मिल जाएगा. So you have a soul connection with your Krishna. या तो वो ऐसे वाला आप होता है. 10 मंदिर चले जाओ, आप 10 मंदिर चले जाओ, एक मंदिर में जाके, अब जैसे नंदिता जी का माता चिंतपूर्णी में मुझे सोल कनेक्शन लगा था. When she visited चिंतापूर्णी ना, I found कि वहां पे इनकी आत्मा इतनी ट्रिगर कर रही थी, इतनी ट्रिगर कर रही थी, that she didn't know कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, you know. So कभी-कभी हो सकता है कि इनका सोल कनेक्शन देवी दुर्गा के साथ हो, you know, मतलब माता रानी के साथ हो. तो वो आपको ना एक टेम्पल में जाके जो आप खाना चाह रहे थे वो मिल गया, जो आप देखना चाह रहे थे वो दिख गया, जो इमोशंस आपकी न्यूट्रलाइज नहीं हो रही थी वो हो गई. वो एक सोल कनेक्शन होता है. जैसे मेरा सोल कनेक्शन इस्कॉन वृंदावन में है, मेरा सोल कनेक्शन जाकर नीम करोलॉजी बाबा जी के वहां जाके जुड़ता है, स्पेशली वृंदावन में जाके जुड़ता है. तो एक सोल कनेक्शन, अजीब सा सोल कनेक्शन होता है, अजीब सा, राइट. तो आपको पता लग जाता है कि आपका भगवान के साथ जो कौन सा सोल कनेक्शन है. कहाँ पे जाके आपकी आत्मा को लगता है कि यहाँ पर तो मुझे किसी टाइम की परवाह ही नहीं है, जितना मर्जी टाइम में यहाँ रह जाऊं, यहाँ बह जाऊं. दैट इज द सोल कनेक्शन. और वो एनर्जी सूर्य के ऑपोजिट होती है, याद रखना आप हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज. ओके. गुरुजी, Yeah. on the second point that you were saying, right, like you जो twin flames की बात कर रहे थे, उसमें ना एक एस्ट्रोलॉजर का शांति करके, आई थिंक लाइक यहाँ पे यूएस में ही इज वेरी काइंड ऑफ फेमस. तो उसने बोला था कि राहु और केतु को देखते हैं फॉर दिस ट्विन फ्लेम्स, एंड दैट्स वेयर आई थिंक नंदिता जी यू आल्सो टॉक्ड अबाउट लाइक हाउ इट्स लाइक अ वेरी बिग karmic settlement like with between the twin flames, because वो लोग ना राहु और केतु की positions in each other's chart and उसको analyze करते हैं. Yeah, especially the planets that are connected, like you take the Rashi and then wherever Ketu is sitting, you check the other person's chart and see, because that's where the connection is. That's where the past life trauma is. Yeah. Pretty much twin flame connections. They just have to really learn extremely hard lessons. They mirror each other. So they teach each other the lessons, and it's a very difficult process. It's not what people think, like, oh, twin flame, my soulmate. The path is very, very difficult, but the other end of the path is But a better question- person for both of them. But the question is, what can you do about it? Nothing. No, you can't. That's your karma for that life. So Is to I go through think that it is a process. good idea to understand soul connection rather than twin connection, you know. Because if it is a twin connection, you've postponed it, then probably it's not a good idea. The next Janma is only for that. Again, you have to come back and do it. So if there's a twin connection, let it happen. But if it is a soul connection, you should start enjoying that. Yes. You at least know that you are with your soulmate. कभी कभी आपने देखा है कि एक रिश्ते में क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे के साथ बहुत अंदर से अटैच्ड होता है और दूसरा नहीं होता उसके साथ. उसका रीजन क्या होता है कि एक पर्सन का वो सोल कनेक्शन होता है, दूसरे का नहीं. कभी कभी आप देखो कि एक वाइफ अपने हस्बैंड में बहुत अटैच्ड होगी, बहुत ज्यादा, लेकिन हस्बैंड नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा. कि कभी हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत अटैच्ड होगा, वाइफ नहीं होगी उससे अटैच्ड. But in those situations, isn't the one person there to learn that lesson? Because Of it creates course. an imbalance in the Of course, relationship, right? yes. Eventually,
that will be taken away as the universe balances the karma, right? It We- will take it away for them to course. learn the lesson. We all are here to learn the lessons. We all are here to learn the lessons of life. Every single day, we have some sort of a pain which is going in our mind. And you and me are not away from them. We all are. We all are here to serve lessons of our life. That's it. It is. अगर आप इस जन्म को अच्छा सोचो तो पॉजिटिव है, लेकिन अदरवाइज तो सबसे बेकार जगह है इस धरती पे रहने की. धरती इज ए बेकार. Today you people were talking about moksha. Sorry, Praveen ji, 1 second. Today you people were talking about moksha in the group. Sunny का question था, जो मेरा भी पहले question था. Why do you want a moksha? We want moksha so that at least we don't see our close ones dying. That is the only one reason. After my brother was gone, the only reason I want moksha is that I don't see anyone else dying. But I know till I'm in this biological suit, I will have to see people die. You understand? That is where the maximum pain is. लोग कहते ना, चलो जो हुआ विधि का विधान था, ये ऐसे ही होना था, ये ऐसे ही चलता है. ऐसा नहीं है. विधि का विधान था, लेकिन आपका मन क्यों नहीं समझ पाता कि ये विधि का विधान. आप सारा दिन खुश रह सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन जब आप रात को सोने जाते हो, जब आप अकेले होते हो, तब नहीं मन मानता, तब नहीं मन समझता. आप पाठ करते हो, मंत्र करते हो, फिर आप एक तरफ साइड पे लग जाते हो, लेकिन फिर एक सेकंड के लिए मन नहीं मानता है. बट गुरुजी, इसी बायोलॉजिकल बॉडी में वी कैन अटेन सेल्फ रियलाइजेशन ऑल्सो. जैसे कृष्णा को अर्जुन के साथ दोनों थे, उसका भाई कौरव भी था और अर्जुन भी थे, बट अर्जुन के ही साथ भगवान का कार्मिक कनेक्शन, तो उन्होंने ही उनको पहचाना, बाकी तो नहीं पहचाने. You see, Arjuna You can is a self-realize in Rudra. this, no? See, Arjuna are 5 Rudras. Wherever Narayan will be there, Guruji, Shiva will be there. That's a mythological thing. Let us talk जी. practically. जी. They both were a soul only, na? In a biological form. भगवान भी दो हाथ से ही थे, 10 हाथ से नहीं थे. जी. But he was a realized master. उन्होंने अर्जुन को रियलाइज करा दिया. जी. उन्होंने तो खुद ही युद्ध करवा दिया, भाइयों से ही भाइयों को मरवाया. देखो, अगर भगवान कृष्ण यहाँ आ जाए और हमें रियलाइज करवा, तो हमें भी रियलाइजेशन हो जाएगी. प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान हैं. वी आर तुच्छ प्राणी. वी आर एट अ वेरी लो लेवल in this universe. We'll have to rise to a level by taking Hari Naam. Only Hari Naam ही उसकी सीढ़ी है, और कोई सीढ़ी नहीं है. Yes. और हम ज्योतिष कर क्या रहे हैं? हम ज्योतिष सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पेन को समझ सकें कि वो दर्द जो हो रही है उसका रूट कॉज क्या है. हम यही कर रहे हैं ना ज्योतिष के अंदर, कि आपका सिर दुख रहा है. आप बोलो कि आपको किसी ने सिर पे चोट मारी है, इसका मतलब सिर दुख रहा है? नो. उसका कारण कोई भी हो सकता है. आपके अंदर गैस भी हो सकती है, आपको ठंड लगी भी हो सकती है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी मस्कुलर पेन भी हो सकती है, आपकी बालों की पेन भी हो सकती है. देयर कुड बी सेवरल रीजंस. To learn Jyotish is to understand the root cause of the pain and give medicine or give a supplement. आज कोई बोला था 7.5 है गुरुजी, उसको हम शुक्र का जेमस्टोन क्या करेगा 7.5 के अंदर? पागल हो गए हो क्या आप लोग? Why do you consider gemstones as medicines? Gemstones are supplements. आपने बोला ये. Gemstones हम किसी को डलवाते हैं उसको एनहांस करने के लिए, उसको नए जो बेकार रिश्ते हैं ना वो सारे टूट जाते हैं अच्छा जेमस्टोन डालने के बाद, और उनको लगता है मेरे साथ बुरा हो रहा है. ऐसे नहीं हो रहा. आपकी लाइफ में से कचरा साफ होता है जेमस्टोन डालने के बाद. It is your growth, because when you start growing you have to be alone. When you get lot of associations, it is not a good thing. When you get only one good association, it is the wonderful thing that can happen to you. Guruji, and to be on Praveen's side, Praveen ji ने जैसे अभी बोला, even when Abhimanyu had died, like अभी starting में ही क्या कहते हैं पूरा गीता का सार दिया, 10 दिन में अभिमन्यु मर गया, तो अर्जुन also gave up कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा बच्चा मरा है, right? So it's like कि
ऐसा नहीं है कि वो रियलाइज था, तो उसको भी बार बार रियलाइजेशन होनी पड़ी थी. इट्स नॉट दैट एक बार रियलाइज हो गया तो खत्म, नहीं. That's why you Every need now and guru. then God, yeah, that's why like Krishna again came and like again persuaded him कि हाँ ये, I mean उस वक्त कृष्ण ने ये नहीं बोला अरे तुझे अभी तो समझाया था 10 दिन पहले भूल गया तू, ऐसे नहीं करा. Like he told him ये ना again कॉन्टिन्यूस and he, चीज है. Continuous yeah, learning. That's why you need a yeah, guru. it's a मैं process. देखो, मेरे को सपने में आया, मेडिटेशन में आया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आया कि मुझे विष्णु सहस्त्र नाम का ग्रुप बनाना है. और आपको क्या लगता है, विष्णु सहस्त्र नाम का ग्रुप एक बारी की चीज है? इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. आपकी लाइफ में दुख आते जा रहे हैं, आप पूजा पाठ करते हो, 2-4 दिन आराम आता है, 5वें दिन फिर कोई नया क्लेश आ जाता है. आपको भगवान का वो कॉन्टिन्यूअस साथ चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस रियलाइजेशन चाहिए. दिस इज व्हाट शी इज सेइंग. और यही तो मैं फेस कर रहा हूँ. आज मैंने हरि नाम लिया, मालाएं की, मैं चलो मेरा सारा दिन बहुत अच्छा निकल गया. रात के आधा घंटा फिर खराब निकलता है सोने से पहले. फिर मैं हरि नाम लेता हूँ, रात को नींद आ जाती है, उड़ जाता हूँ, सुबह काम पे लग जाता हूँ. 2 दिन बाद रात को फिर वही एकदम से जिसको बोलते हैं चीज होती है. सो you know, it is like a continuous thing which is required, and we are in trouble on this mother earth, right? When you have money, you have problems that you face in life that money can't buy. जब आपके पास 4 पैसे बहुत आ जाते हैं ना, तो भगवान आपको ऐसी प्रॉब्लम देता है जिनका हल पैसे से नहीं हो सकता. मतलब मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं अगर मेरा भाई वापस आता है, कोई भी कीमत, आई कैन टेक दैट कीमत आज की डेट में. लेकिन भगवान आपको प्रॉब्लम ही ऐसी देगा जिसकी कोई कीमत का कोई हल ही नहीं है जिसका. और कुछ लोगों की जिंदगी में कीमत वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन उनके पास कीमत ही नहीं है उस चीज को सॉल्व करने की. यही कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है. इससे बड़ी विडंबना हो ही नहीं सकती. सिमरन जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर मैं पूछना चाहती हूँ अगर आपने इस चीज पे रिसर्च करी है कि नहीं, क्योंकि मैं भी अपने चार्ट को देखा, तो जो आप अंतरदशा बोल रहे हो, मेरे नवांशा के हिसाब से अंतरदशा राहु की आती है इस चीज में. तो मैंने सैटर्न जो मेरी फर्स्ट दशा थी उसमें तो मुझे याद नहीं, लेकिन मरकरी की दशा में राहु की अंतरदशा में आई डिड मीट समवन जो गुड कनेक्शन था. फिर सर केतु की दशा में, राहु की अंतरदशा में आई हैड माई सन एंड उसके साथ है कनेक्शन, वो सन इन पुनर्वासु है. सो ये एक और कनेक्शन है. फिर अब वीनस की दशा में राहु में अंतरदशा में आपसे मिली और आपका भी सन इन पुनर्वासु है. यस. और आप भी आत्माकार, आपका भी आत्माकार का सन इन पुनर्वासु, मेरे बेटे का भी सन इन पुनर्वासु है. तो देयर इज सम लिंक, बट मुझे नहीं समझ आ रहा. बट अगर आप कभी रिसर्च करो, अब आप ये कहते हैं ना कि एक सोलमेट, देयर कैन बी मेनी सोलमेट्स. You know, so I and Simranji has never met, but you know, when I am trying to give a message, Simranji के पास उसका जवाब या मैसेज पहले ही होता है, because we are thinking at the same level. ये वाली क्लास ऐसे करेंगे, ये वाला बैच ऐसे बनाना है, वो करना है. मतलब मैंने कुछ कहा नहीं होता, उनका जवाब पहले आया होता है कि हम ये करने वाले हैं. ऐसे इसको पहले ही पता है, because that frequency of Guru Shishya is matching. Guru Shishya at a soul level. एंड सर सेम मेरे बेटे के साथ है, गुरु शिष्य वाले. उसको मैंने मकर कल रात सुबह डांटा इस बात पे, वो कह रहा है लक कुछ नहीं होता. तो मैं बल्कि आपसे पूछने वाली थी कि आपने भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे किया था क्या, कि यंग एज में बोला था लक कुछ नहीं होता, हार्डवर्क सब कुछ होता है. देखो, मेरे को कभी भी नहीं ये लगा कि हार्डवर्क सब कुछ होता है, बचपन से ही नहीं लगा कभी, क्योंकि मुझे कभी भी नहीं लगा. ऑल्दो आपका हार्डवर्क भी अगर भाग्य में होता है तो ही आप हार्डवर्क कर सकते हो. मैं इस लेवल पे जाता हूँ. अगर आपके भाग्य में हार्डवर्क है, ओनली देन यू विल वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल नॉट. सर सॉरी आपको काट दिया, आप कुछ कह रहे थे. पता नहीं, भूल गया मैं. ओह माय गॉड सर. नो इश्यूज. क्या नंदा जी, क्या कहना चाहती हैं? Well, I just kind of wanted to say a little bit before, and I also forgot what I was exactly going to say. But like, I find it that, the question on the whole moksha thing, why do we want moksha? I mean, it's true, and we all feel it, that we all came to Jyotish to get some answers about our own lives. Probably that's how we start.
But once we understand that process, it should get easy as we go through life, because I kind of feel, at least in my personal life, like not many things affect me, because I truly believe like there is no one to blame. It is our own karma, what we go through. And you have to really take that statement to heart. And once you take that statement, when you lose people, when you go through life, when somebody does something negative to you, you're truly unaffected, because since I've taken that statement, things have happened to me and I've gone through the process, and Guruji knows the process and things that have happened to me. I'm so indifferent to that person, no matter what they've done to me or what they continue to do me, because if you just tell yourself or truly accept it in your heart, the statement that whatever that is happening to you is based on what you have to go through. And the best thing to do is to go through that in this life, because why would you want to waste this life? Because in next life, you want your soul to evolve, right? Like you should not waste this life. Go through the karma that you have to go through and be rid of it, because taking birth on planet Earth is a punishment. This is not heaven. We're here because we messed up and we have to learn the lessons. And So you know if you what? take that into acceptance, then you can go through life and not have things affect you emotionally and traumatically and you know, psychologically. But you have to be truly in one with that statement, and only then nothing will affect you. And that's what I'm going to teach you people, the remedies, you know, in the next class that we have, where I will tell you how you should take your Jupiter and other planets. You know, for an example, if there's a planet which is sitting in the Kendras, so Kendras में अगर कोई लगन में ग्रह है तो उसको बोलेंगे कि वो ग्रह लगन भाव में है. अगर 4th हाउस में कोई ग्रह बैठे हैं तो वो सारे के सारे ग्रह आपके मोक्ष भाव में हैं. अगर कोई सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठे हैं, हम उनको बोलेंगे काम भाव में है. अगर वो दशम भाव में जाके कोई ग्रह आपके बैठे हुए हैं तो वो अर्थ भाव में है, अर्था भावास. ओके. और इसी तरह से अगर कोई दुष्टाना में बैठे हैं तो उसमें बताऊंगा आपको. अगर कोई खर भावास में बैठे हैं, सो तीसरा, चौथा और पांचवा खर भाव होता है. You know that? How many of you know 3rd, 4th and 5th is a khar bhava? Raise your hands. 3rd house, 4th house, 5th house is a khar bhavas. Okay. So we'll tell you about the khar bhavas as well. And अगर अपने भावों में बैठे हुए हैं, जैसे बृहस्पति जो है अपने कारक भावों में बैठा हुआ है 2, 5, 9 and 11, तो हम बोलेंगे बृहस्पति कारक भाव में है, दुष्टान भाव में है, खर भाव में है, ठीक है, काम भाव में है, मोक्ष भाव में है. तो ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे डिफरेंट. और आपकी कुंडली में जितने भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की आपको मैं नेगेटिव डेफिनेशन समझाऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर. यू नो, रेट्रोग्रेड को हम बोलते हैं ना चेष्टा बला, और वो बहुत पावरफुल हो गया है. लेकिन आपको पता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट को सबसे बड़ा दोष कौन सा लगता है? रेट्रोग्रेड प्लैनेट, वक्री ग्रह को द बिगेस्ट दोष इज नोन एज राहु दोष. Any retrograde planet is first of all getting Rahu dosha. Yes or no? Right? कोई भी रेट्रोग्रेड ग्रह जो है वो राहु दोष में है, सीधी सी बात है. उसके बाद बात करेंगे चेष्टा बल की, क्या होगा, कैसे होगा. और व्हाट इफ अगर आपका एक ही सोलमेट है, एक मिनट मेरी बात समझो, आपका सोलमेट है, ठीक है, ऑपोजिट टू योर सूर्य, और वो रेट्रोग्रेड है, या अगर वो जो जिस लॉर्ड की आप बात कर रहे हो वो रेट्रोग्रेड है, यानी कि आपका सोलमेट राहु दोष में है, वो कैसे फलित करेंगे आप? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके सूर्य के बिल्कुल ऑपोजिट कोई ग्रह जो है वो रेट्रोग्रेड हो और आपका उसकी दशा चल पड़ी है, तो लेकिन वो आपका जो सोलमेट आपको मिला उसको राहु दोष लगा हुआ है, तो उसको कैसे फलित करना है उसकी हम आपको डिटेल में, थोड़ा सा आपको मजा आएगा उस चीज को समझने में. थोड़ा एडवांस लेवल है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में तभी आएंगे जब मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से. लेकिन रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को जहां पर आप चेष्टा बल के साथ देखते हो, वहां पे राहु दोष के साथ देखते हो.
ठीक है, कल आपको राहु दोष बताएंगे, शनि दोष बताएंगे, मंगल दोष बताएंगे कि कौन सा ग्रह फॉर नो रीजन मंगल दोष में है, कौन सा ग्रह फॉर नो रीजन शनि दोष में है. There are several planets which are in the Rahu dosha for no reason. They don't look there in the Rahu dosha or a Shani dosha, but they are in the Shani dosha. Right. So we'll be teaching you some advanced concepts. लेकिन जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है ज्योतिष भूषण में, उसमें कुछ स्पेशली धन भाव, ठीक है, कि आप रिवीजन करिएगा. मैं छोटा सा टेस्ट आपका लेना है बेटा, बड़ा मन है आपका टेस्ट लेने का. कल मेरे को टेस्ट लेना है आपका, राइट. आपके पास दिन है, आप रिवाइज करिए, रात है आपके पास, वो टेस्ट बन के आपको जो मिल जाएगा आपको करना है. वो बहुत जरूरी है उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि हम सेम प्लेटफॉर्म क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम धन योगा के भी 5 लेक्चर और पढ़े. ठीक है. सो अभी जो है मतलब उस दिन क्या हुआ, मैंने पूछ लिया आपसे कि कुबेर कहाँ पे होते हैं कुंडली में. पीपल वर पिन ड्रॉप. मेरे को लगा कि कुबेर तो ये, और अभी मैं आपसे पूछूं कि आपका परिवार कहाँ बैठता है, तो बताओ, वेयर इज योर फैमिली इन योर कुंडली, वेयर इज योर फैमिली इन योर कुंडली. हाँ, Second. अब अपना हाथ ही अपने मुंह पे एक चांटा सारे ही मार लो. 12th house. From Lagna. 12th from moon. 12th from moon is your family. Yeah, Swasti. स्वस्ति. अब देखो ये Second is- याद नहीं है. Fixed asset. Second is. ठीक है, ये लो हाथ लो और लगाओ, जैसे मिल्खा सिंह ने मारे थे ना अपने मुंह पे थप्पड़, वैसे मारो. ठीक है ना, वो बाथरूम में जाके मार रहा था ना, ये क्या किया तूने, क्या किया तूने. ठीक है, ये वो बात है. ठीक है ना. इट इज 12th फ्रॉम द मून इज योर परिवार. स्वस्ति. अगर परिवार को देखना है कैसी उसकी वाणी, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो चंद्रमा से 12वें हैं. यही मैं कह रहा हूं, आई वांट यू टू रिवाइज. देखो ऐसे मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे तो उसमें आपका पिछला रिवीजन, आपके पास तो सारे नोट्स हैं, इतने प्यारे नोट्स शशांक जी ने, इन्होंने सबने लिख लिख के आपको दिए हुए हैं, मजेदार. आप रिवाइज करो. शशांक जी, यू वांट टू से समथिंग, आप यू रेज्ड योर हैंड. शशांक जी, you can unmute yourself. Shashank ji, maybe some connection problem is there with Shashank ji. 12th house, 12th from the moon, नेहा लिख रही है. 2 and 12, no, it's the 12th house from the moon. देखिए राशि, चाहे हम बोलते हैं कुटुंब 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 द्वितीय भाव में है परिवार, वो बहुत बेसिक लेवल पे सिखाया जाता है. आपको एडवांस लेवल सिखाया है, जिसमें आप अपने परिवार को देखना चाहते हो. चंद्रमा से 12वां देखो ना, चंद्रमा से 12वां आपको परिवार, आपका एक्चुअल परिवार. आपके परिवार ने ही तो आपको जन्म दिया, आपके मन को जन्म दिया. आप क्या खाते हो क्या पीते हो, वही खाते हो जो आपका परिवार खाता है. आपकी माँ ने जो आदत डाल दी वो आपको आदत पड़ गई. अगर आप पंजाबी है तो आपकी माँ ने आपको छोटे से कोई मक्की की रोटी सरसों का साग खिला दिया. अगर आप साउथ में हो तो आपको इडली डोसा खिला दिया. आपको वही अच्छा लगा आपके मन को. चंद्रमा से जो है बिल्कुल पीछे वाला भाव है, जहां से आप आके आपका मन डेवलप हो रहा है, वो आपकी परिवार है. ये मैंने सिखाया है स्वस्थ. इसीलिए मुझे पता है कि कोई क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपके पास जवाब नहीं, एटलीस्ट आप रिवाइज तो करोगे. अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको पता तो लगेगा नवनीत सर पूछना क्या चाहते हैं आपसे, मैं क्या चाहता हूं कि आप किस स्टैंडर्ड पे आओ. क्योंकि आज देखो, आज हमें कुंडली डली थी, उस कुंडली के अंदर मैंने उसको लिख के दिया ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम. ठीक है ना, उसको ट्रैवल एंड टूरिज्म का करवा. वो बोले 15 साल से ट्रैवल एंड टूरिज्म कर रहे. उससे उसका जवाब आया, उसे ज्योतिषी है जो भी है वो कर रहा है, 15 साल से TNT काम कर रहे हैं वो. ठीक है ना. आपको उस लेवल तक पहुंचना है, आपको उस लेवल तक पहुंचना है कि ये TNT का काम करेगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म पे ये काम करेगा बंदा. वो कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो आपको थोड़ी सी एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो चीजों की आएंगी अगर आप एडवांस कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे उसमें. मैं चुपचाप कई कॉन्वर्सेशंस देखता रहता हूँ. People, some of you are doing very good. Very, very सॉरी, good. आप बुला रहे थे, लेकिन आज बेबी सिटिंग ड्यूटीज है, तो Okay. तो आगे इधर उसका चालू था, उसको जी. सेट करके आया है. Okay, तो sir. जी. तो नहीं, ये जो नंदिता जी, पारुल जी और प्रवीण जी की बात चल रही थी, तो उसके ऊपर ही मेरा कमेंट था कि कोई भी ऐसी खराब सर्कमस्टेंसेस आते हैं, जैसे लाइक यू लॉस्ट योर ब्रदर,
Arjun lost Abhimanyu, right? Yeah. So everyone kind of breaks down at that point. I mean, because we are humans, right? We are with that emotion, right? Then that's when the guru and the gyan kind of takes you out of that situation, right? To make you stand up again. Is what I शशांक जी पता है क्या, गुरु ज्ञान इस सिचुएशन से निकालने के लिए जो पारुल की बात है ना, वो सही है। उसमें ना एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए उस चीज से निकालने के लिए। होता है क्या है कि आपको एकदम से कोई नहीं निकाल सकता, राइट? अगर कभी कभी आपके या किसी की भी लाइफ में बहुत दुख आया, उसको मेरे वर्ड्स फॉर अ टाइम बीइंग अच्छे लगेंगे, उसके बाद जब वो अकेला होगा ना इंसान, तो उसको खुद को ही अपने मन को समझाना पड़ेगा, जो मेरे गुरुओं ने बोला था, जो मेरा ज्ञान कहता है। तो हम सेल्फ टॉक करके निकालते हैं। लेकिन जैसे जख्म को भरने में वक्त लगता है ना, क्योंकि अगर तो साक्षात कृष्ण हमारे साथ बैठे हो, हमें सिर पे हाथ रख दे, टच कर दे, तो वो सारा आपकी पूरा माइंड, बॉडी एंड सोल फ्लैश हो जाएगी, एंड विल बी ए न्यू जन्म। आपको पता है हर एक की लाइफ में 3 जन्म होते हैं। हर एक की जिंदगी में कितने जन्म होते हैं? 3। पहला जन्म जब आपका जन्म जो है आपने लिया। दूसरा जन्म पता है कब होता है? जब आपको गुरु मिलते हैं। आपका जब गुरु आपको मिल जाते हैं, वो आपका दूसरा जन्म होता है। और तीसरा जन्म कौन सा होता है? तीसरा जन्म वो जन्म होता है जब आप गुरु बनते हो, वो आपका तीसरा जन्म होता है। When you become a guru now, आप देखो ना, आप आज स्टूडेंट हो तो आपका एक नया जन्म हो चुका है, लेकिन जब आप गुरु बनोगे ना, तो आपका एक तीसरा जन्म होगा। आपकी पूरी छवि अपने मन की बदल जाएगी। आपका कुछ गलत करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने आप हो गए। आपको कितने लोग गुरु बोलते हैं, उन सब का ध्यान रखना है। जो लोग गुरु को बताते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, गुरु को मालूम है किसको क्या करना है, कैसे क्या करना है, बिकॉज उसका तीसरा जन्म हो चुका है। एक ही जीवन में 3 जन्म मिल जाते हैं। इट इज द सेम कॉम्बिनेशन, सन, मून एंड जुपिटर। पहला जन्म सूर्य है। जब आप शिष्य बने तो चंद्रमा बने आप, मासूम। यू आर एक्सेप्टिंग। आप कभी गलत, एज ए स्टूडेंट यू कैन नॉट बी रॉन्ग, बिकॉज इवन इफ यू आर रॉन्ग, गुरु इज देयर टू टीच यू। एंड तीसरा जन्म जो होता है, वो आपका कौन सा जन्म होता है? वो आपका बृहस्पति के रूप में जन्म होता है। यू बिकम लाइक बृहस्पति। वो आपका एक ही जीवन में तीसरा जन्म होता है। अभी आप सब लोगों का दूसरा जन्म हुआ है, लेकिन एक लेवल के बाद आपका तीसरा जन्म होगा। When students will start looking up to you, वो आपका तीसरा जन्म होगा। चलो आज इतना ही। हाँ, आई होप यू एंजॉयड टुडे। हाँ।